Bonjour Navia, comment ça va? Ça va? Et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Bonjour Kanika, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Alors Navia, tu es rentré à quelle heure chez toi? Tu es rentré à quelle heure chez toi? Aujourd'hui, j'ai rentré à euh, avec un what time did I come? Tu es rentré à quelle heure? À the À? meeting. À the meeting. À 2 heures de l'après-midi. You want to say this? Yes, sir. Or you could have simply said à 14 heures. Yeah, But there was a little error. What was the error, Navya? I शुरुआत said you. No, that was okay. But आपने यहाँ पे आपने शुरुआत में कुछ कहा. You said something at the beginning. Oh, j'ai rentré à 14 heures. Yeah. So you No, said what? it should be just be rentré. Exact. Because it comes in admin. Absolutely. So I think that was a little thing that you got hold of. So it is from the family of être. So you would say je suis rentré. Absolutely. Très bien. So I'll just write it down for you. Monsieur, je suis rentré. Voilà. Ça va? Yes. Très bien. Et toi, Kanika, tu t'es couché à quelle heure hier? Tu t'es couché à quelle heure hier? Je me suis couché à 2 heures. Tu t'es couché à quelle heure? À quelle heure hier? À quelle heure hier? Ok, so tu peux répéter? Je me suis couché à 22 heures. Voilà, je me suis couché à 22 heures. Très bien. C'est clair? Ça va? So you should be absolutely comfortable with past tense now. In A2, absolutely, because when we'll be having our exam, the test that we'll have at A2 level, I'll be asking you past tense question. Alors, est-ce que, Kanika, tu as parlé au téléphone hier? Est-ce que tu as parlé au téléphone hier? Je suis parlé au téléphone. Oh là là! J'ai parlé. Oui, est-ce que tu as parlé au téléphone hier? Voilà. So what is the answer that I get from your side, Kanika? Oui, j'ai parlé. Voilà. Oui, monsieur, j'ai parlé au téléphone hier. Oui, j'ai parlé. J'ai parlé au téléphone hier. Très bien. Ok, parfait. Et toi, Navia, est-ce que tu es allé au marché hier? Non, euh, je, euh, je ne suis pas allée au marché hier. Tu es allé au marché hier. Everyone, please pay attention and do the answer, everyone, but the answer is going to come from Navya's side first. So, Navya, you don't have to use au marché anymore. So, what do you say? So, get. Use, Oui, no. non, euh, je ne euh, suis pas allée. This becomes why, isn't it? Euh, Isn't it? Yes, it does. So, no, मैं वहाँ नहीं गई. So, euh, j'y n'ai sir, I cannot pronounce you cannot pronounce it, but can you write it? Can you help me to write? it. बताइए. But no, tell me. Je Je n'y pas, je n'y suis pas. क्या पढ़ेंगे इसको? Je n'y suis pas allée. Voilà. Kadam, je n'y suis pas allé, monsieur. What does that mean?
नव्या, je n'y suis pas allée. I did not go there. हाँ, मैं वहां नहीं गई. कहाँ नहीं गई? मार्केट, बिकॉज मार्केट का हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया. D'accord? शिवानी, ça va? Bonjour. Ça va, Shivani? Comment ça va? Je vais bien aussi. Merci. You can put your camera on, Shivani. Okay, next one. We had also done EN wala rule, right? Kanika. Tu as acheté des fleurs. Kanika, tu as acheté des fleurs hier? Tu as acheté des fleurs hier? Oui, je n'en ai acheté. Voilà, oui, je n'en ai acheté. Oui, je n'en ai. Je n'en ai. J'en ai acheté. हाँ, और नहीं खरीदे होते तो कनिका? No, je n'en ai pas acheté. Very good. ये तो याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, बड़ा सिंपल है, राइट? नव्या, oui, j'en ai acheté, je n'en ai pas acheté. Navya, tell me. I want to ask, like, we use on for things and we use Y for the places. Yeah, we use Y for places when we have to say there, and we would say on when there is de either preposition. Okay. Right? So it can be for human beings also. जो en है वो human beings के लिए भी आ सकता है. अगर आपको कहना है, I'll tell you with an example. If you have to say something of this sort, you want to say, are there some students in the class? Class में बच्चे हैं क्या? So I would say, il y a des étudiants. क्या बच्चे हैं क्लास में? तो आपने कहा नो, il n'y en a pas. नो, il n'y en a pas. राइट? तो en किसके लिए है नव्या? बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. सवा. सो एनीथिंग जो दे में आती है, अ में आती है, जिसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम en से रिप्लेस करते हैं. ये किया है ना हमने टॉपिक से फिनी से क्लियर नो ई एंड ओ. चलिए इसको प्रैक्टिस करना है. शिवानी, सवा. See, I don't get to see you and I don't understand then. चलिए, सो आपको कुछ होमवर्क दिया था. व्हाट वाज द होमवर्क कनिका? टेल मी. Plus particle exercise. ओके, प्लीज पार्क वाला. आई थिंक यू पीपल हैव डन इट. मैं भी चेक करता हूँ. उससे पहले फटाफट से मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ. सिर्फ 2 मिनट. आप फटाफट से इस टेक्स्ट को देखिए. या I to have one more question. या टेल मी. So, we use imparfait to say any past habit, talk about any past habit, continue in past habit. Yes. But the first to past is same. So, how can we distinguish when to use imparfait and when Right. to use? Okay, I'll tell you. Just give me 1 quick minute and you read this. First, you read this so that you'll get to know. Take a minute or two. Look at the text and then we'll see. Just read it. Just give a little reading to it. Okay. 1 quick minute more.
Okay, très bien. You got a little idea, right? You don't have to do the whole thing. चलिए, first we'll quickly go back to Navya's question. So Navya is asking, how do you distinguish between कब हमें PQP काम में लेना है? PQP मतलब प्लस के पार्फ, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? PQP, PQP. समझ में आ गया? प्लस पार्फ का मतलब क्या है? कनिका, शिवानी, नव्या, had, I had eaten, she had gone, we had understood. ठीक है? अंग्रेजी में had लगाते हैं, ठीक है शिवानी? और हिंदी में क्या बोलते हैं नव्या? मैंने खाया था, मैं गई थी, हमने देखा था, उन्होंने बोला था. ये जो था या थी या थे लगता है कनिका, ये हमें बहुत पीछे ले जाता है पास्ट में, तो इसको बोलते हैं प्लस के पार्फ. ये समझ में आता है आपको नव्या? सो I had eaten this fruit in Spain. कोई एक अजीब सा फ्रूट था जो इंडिया में बहुत रेयरली मिलता है. ओह, I'd eaten this fruit in Spain. ये फ्रूट मैंने कहाँ खाया था? स्पेन में खाया था. So, any guesses? Anyone who can help me with this sentence? How do you say this? I had eaten this in Spain. Anyone? J'avais mangé On Espagne. en Espagne. खत्म. J'avais mangé en Espagne. Ah, ce fruit, voilà. J'avais mangé ce fruit. मैं फ्रूट को ce fruit, right? F-R-U-I-T, ce fruit. Is that okay, शिवानी, नव्या? मैंने ये फ्रूट स्पेन में खाया था. खत्म बात. ओके, तो ये प्लूस पार्फेक्ट क्या करता है? आपको बहुत पीछे ले जाता है टाइम में नव्या, बहुत पीछे था. अब हम बात करते हैं एम पार्फेक्ट की. एम पार्फेक्ट दो चीजें बताता है. I used to eat this fruit. मैं ये फ्रूट खाया करती थी. I was eating this fruit. मैं ये फ्रूट खा रही थी. अब आप बताओ पहले, इंग्लिश में आपको लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है? Isn't it? अलग तो है ही ना? तो अगर आपको ये वाली बातें बोलनी है आपको नव्या, तो आपको एम पार्फे में जाना होगा, और अगर आपको ये वाली बातें बोलनी है तो आपको प्लस पार्फे में जाना होगा. तो वो वाली बातें कैसे बोलेंगे हम नव्या? I used to eat, I was eating, spelling. The E with R. Very good. Je mangeais ce fruit. इसका मतलब है I was eating this fruit या I used to eat this fruit. बताइए, कोई डाउट? नव्या, क्लियर है? कनिका, शिवानी, ये पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है. अब A2 में लार्जली सारे टेंसेस की मास्टरी हो जानी चाहिए. जब B1 पे शिफ्ट करेंगे हम, तब हम 2-3 टेंसेस बचेंगे, लेकिन ज्यादा हम बातें करेंगे किस पे? सोसाइटी पे, फैमिली पे, हम प्रोफेशन पे बातें करेंगे. हम बातें करना चालू कर देंगे तब. B1 इज मोर अबाउट बातें बातें एंड बातें. यू हैव टू टॉक अ लॉट ऑन टॉपिक्स. ये ग्रामर और ये इस प्रकार के जो टेक्स्ट होते हैं ना, हम छुट्टी में बिताने गए, हमने फूल खरीदे, हमने गाना गाया, हमने डांस किया, सब खत्म. ये सब कर चुके हैं हम. उसके बाद हम एक बड़े लेवल पे चले जाएंगे, वेयर वील टॉक अबाउट सोशल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, फैमिली लाइफ, लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, ट्रैवलिंग. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट? हम बड़े लेवल पे बात करेंगे. तब हमें सारे टेंसेस आने चाहिए. टेंसेस का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, राइट शिवानी? सो उसे बहुत मेहनत करिए इस पे, अगर आप आगे कंटिन्यू सिंसियरली करना चाहते हैं तो, और भीड़ से अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं. People don't work that hard, believe me. So you have to really work day in and day out. हर दिन मेहनत कीजिए. Okay. चलिए. Ça va, c'est clair, Navya? C'est bon? Okay. I think you people have shared some answers from your side. I'll just quickly look at the answers you shared in the on WhatsApp. और you haven't shared? कोई बात नहीं. So एक बार मैं शिवानी ने भी भेजा है और नव्या कनिका आपने भेजा है, तो मैं एक बार शिवानी वाले डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ, या because or rather I'll open that same document. How many questions were there? They were, अच्छा 5 से सारे है ना, सारे 5. मैं एक काम करता हूँ, मैं वो डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ एक बार, रुकिए, स्क्रीन पे खोल लेता हूँ ताकि आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. वो था प्लस पार्फे था शायद, ये वाला डॉक्यूमेंट था. लेट मी सी, आई थिंक सो ये वाला ही था. ओके, फिर साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग. वॉज इट दिस वन? यहाँ से चालू था. बताइएगा आप मुझे. ये वाला क्या है? नव्या, कनिका, शिवानी, आप बताइए. कौन एले कौन थे? दिस वन? ये वाला क्या है शिवानी? ठीक है, चलिए. सो इसको समझ लेते हैं हम. सो quand elle est rentrée, जब वो लौटी,
मैं संदेश भेज चुका था। नव्या, आई हैड सेंट द मैसेज। कैसे बोलोगे नव्या? J'avais envoyé le message. वेरी गुड, जावे envoyé le message। मैं संदेश भेज चुका था, मतलब ये काम पहले ही हो चुका था और ये काम बाद में हुआ। तो जब कभी भी दो काम होते हैं कनिका, जब तुम आए मैं खा चुका था, जब वो पहुंचे वे जा चुके थे, तो पहुंचने वाला काम क्या हो जाएगा? पासे कंपोजे। और उससे पहले जो हो चुका है काम शिवानी, वो होगा प्लस क पारफे। क्लियर है? एक सेंटेंस सब ट्राई कीजिए। व्हेन शी अराइव्ड आई हैड ऑलरेडी टेकन बाथ। जब वो घर आई, मेरी फ्रेंड आने वाली थी, मान लीजिए कोई गर्ल कहती है मेरी फ्रेंड आने वाली, तब उससे पहले तो मैं नहा चुकी थी। सो व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड, व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड एट माय प्लेस, at my place, I had already taken a bath. चलिए बताइए फटाफट से, कौन कौन कर सकता है इसको? एक छोटी सी हेल्प दे देता हूँ पहले ही, ताकि आप गड़बड़ ना करें। व्हाट इज टू टेक अ बाथ? एनीवन बताइए कौन सा वर्ब होता है? सोलावे नव्या, सोलावे। Pushes to sleep. या सो नहाना कौन सा वर्ब होगा? सोलावे। चलिए सोलावे को कौन से टेंस में करना है शिवानी? पासे कंपोजे में या प्लस के पास में? शिवानी प्लस पार्फे में। और पासे कंपो सॉरी स लावे वर्ब प्लस पार्फे में कौन से वर्ब के साथ कॉन्जुगेट होगा कनिका? एत्र या वार? एत्र। चलिए करिए, लेट्स सी किसका आंसर। एकदम सही आंसर आना चाहिए, 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं। सवा से फिनी कनिका, नव्या, शिवानी। लिख लिया शिवानी? हुई? चलिए अब मैं लिख रहा हूं, अब आपको बताना है कि आपने एग्जैक्टली ये लिखा है या ये। व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड, देखिएगा, कौन मो नामी ए तारीबे शे मुआ। बताइए यहां तक किस किस का सही है? सही है शिवानी, कनिका, नव्या? एक भी गलती नहीं है? न ई की गलती, न ए की गलती, न शे की, न मुआ की। शिवानी पक्का? ठीक है। सर ए में डबल ई भी लगाया हाँ ये एक्स्ट्रा ई नहीं लगाया था ना, अब लगा लीजिए और ध्यान रखिए। ठीक है। जब मेरी सहेली घर पहुंची, मेरे घर पहुंची, मैं तब तक नहा चुका था या मैं तब तक नहा चुकी थी। ज शिवानी आप बताइए क्या होगा? जावे चलिए पहले शिवानी का लिखते हैं। जावे, आगे? जावे देजा जावे देशा, फ्री फ्री, फ्री बिया बिया। बिया क्या होता है? BAIN बा। तो ये तो मैंने ये तो मैंने सिखाया ही नहीं आपको। ये क्या लिखा है आपने? कहाँ से देखा ये? गूगल महाराज से तो नहीं सर, नहीं? नहीं सर, तो फिर सर मैंने आज पढ़ा था डिक्शनरी इसकी। आज ही पढ़ा आपने? तो क्या होता है इसका? वो बताइए वर्ब क्या है, कौन सा वर्ब काम में लिया आपने? टेक बात सर, टेक बात को कैसे बोलते हैं फ्रेंच में? टेक मतलब तो सर प्रॉन मतलब फ्री। ठीक है, प्रॉन्स हो गया। और सर साल जी किया मतलब बाथरूम। नहीं, साल दे बैं तो बाथरूम होता है, पर प्रॉन्स को अ बैं।
prendre un bain. J'avais déjà pris un bain. ठीक है, चल जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरा वर्ब काम में लिया, नव्या कनिका इन्होंने काम में लिया है prendre un bain. टेक अ बाथ ऐसे भी चलता है, prendre un bain ये भी चलता है, ठीक है, टेक अ बाथ वर्ड टू वर्ड है, एकदम सही चलता है. तो क्या किया शिवानी ने prendre का प्री कर दिया और ये जावे लगा दिया अवार का, क्योंकि prendre तो अवार ही लेगा. ठीक है, कनिका बताओ, आपने भी यही किया है, कोई और किया है? कनिका d'accord, and Navya सेम. ब्रावो, एग्जैक्टली करेक्ट, राइट. तो ये एकदम एग्जैक्टली जो मैंने पूछा था वो है, बल्कि ये गलत नहीं है, ये भी एकदम 100% सही है शिवानी, बट मैंने ये सिखाया था तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आपने वाला कर दिया. Je m'étais déjà lavé, मैंने अपने आप को ऑलरेडी धो लिया था, which means I had already taken a bath. सवा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, पर फिर टाइप बात तो ये भी बोल सकते हाँ हैं. बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला इसलिए चाह रहा था कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बनाना, ये बोलना मुश्किल होता है, तो ऐसे ये हमें आना चाहिए, तो हम फिर भी सिंपल वे में बोल सकते हैं j'avais déjà pris un bain, that's right, right. ओके चलिए, सो यू हैव अंडरस्टूड दिस. आगे देखते हैं. il dash fini leur travail avant midi. कनिका voilà, ils avaient déjà fini. déjà मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि और अच्छा लगे, उन्होंने ऑलरेडी काम खत्म कर लिया था मिडी से पहले, déjà fini, राइट. नेक्स्ट शिवानी आप बताइए. nous nous avions pris le train avant. Voilà, nous avions pris le train avant la tempête. We had already taken the train. Yeah, we had taken the train before the tempest. तूफान से पहले, आंधी से पहले. Next, Navya. You avais mangé le gâteau avant que je n'arrive. Yeah, you had already eaten the cake before I came. ठीक है. And the last one, Kanika. Vous avez क्यों? Vous aviez entendu la nouvelle avant de partir en voyage. मतलब you had heard, yeah, news before going the trip. exactly, you had heard the news before leaving for the vacation or for the traveling or the journey. चलिए नेक्स्ट, कनिका बताओ. नहीं कनिका नहीं, शिवानी आप बताओ. शिवानी, नव्या, कनिका. शिवानी, नव्या, कनिका. चलिए शिवानी. Il était arrivé avant que la réunion ne commence. हाँ, il était arrivé avant que la réunion ne commence. He had arrived before the meeting started. Very good. Next, Navya. Nous étions restés dans le parc avant de rentrer à la maison. What does that mean? We had rested in the park before they entered. Before we entered the house. Before returning to the house. Before returning to the house. पर एक बात बताओ नव्या, रेस्टिंग मतलब बेटा रेस्टेड तो नहीं होता है. रेस्टिंग मतलब रेस्टेड थोड़ी होता है. रेस्टिंग मतलब क्या होता है? टू स्टे. To stay. We had stayed. So what is rested word? हाँ, फिर what is rested? आराम करने को क्या होता है? रेस्ट करना. रेस्ट करना तो आराम करना ना, रेस्टे. To rest. Anyone? बताओ. सीखा है तब, इतनी बार हमने सीखा है. आराम कैसे करते हैं? हाँ, so
relaxer, se détendre. याद आ रहा है détendre? सीखा था ना हमने, se détendre, se relaxer. चलिए कनिका बताओ. Elle était descendue l'escalier avant que le cours ne commence. Yeah. So what does that mean? They fall down the stairs before the day start. Yeah, they got down. They had gone down. Yeah. Elles étaient descendues. Elles étaient descendues. Elles étaient descendues. Descendues में I और S. Elles étaient descendues les escaliers avant que la pluie ne commence. ठीक है. Next. Shivani. Et vous étiez parti avant que je n'arrive. Yeah, vous étiez. A-T-I-E-Z. Yeah. E-T-I-E-Z. Vous étiez parti avant que je n'arrive. Très bien. And the last one, Navya, il. Il était sorti du cinéma avant la fin du film. Voilà, ils étaient sortis. They had left from the cinema hall before the end of the film. ठीक है, चलिए प्लस के पार्फे को देख लेते हैं. लास्ट हमारे पास है प्रोनोमिनल वर्ब्स स वाले. कनिका, नव्या, शिवानी. कनिका, नव्या. Elle m'a dit qu'elle s'était lavée avant le season. C'était या c'était? C'était levé. Elle s'était levé, वो उठ गई थी. Elle s'était levé. लावी नहीं है कनिका, ठीक है. नेक्स्ट नव्या. Nous nous étions rencontrés avant la journée. Very good. Nous nous étions rencontrés with an extra S. हाँ, नू का हमें पता नहीं ना कौन है लोग, इसे हम उससे प्लूरल मान सकते हैं ना, तो इसलिए एस लगा देंगे. एक बार पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम कनिका से. कनिका, इसका मीनिंग बताइए पहले वाले का. She had wake up at 6 o'clock. Yeah, she told me that she had woken up before 6 o'clock. ठीक है, she had woken up. वो उठ गई थी 6 बजे से पहले. और नेक्स्ट वाला बताओ नव्या. We have met before the reunion. Nous nous étions rencontrés. Yeah, we had met each other. We had met each other before the reunion. ठीक है. नेक्स्ट शिवानी. अनम्यूट कीजिए. Vous étiez couché au lit de l'examen. vous étiez couché तो la veille de l'examen. मतलब You went to bed या before the exam. या ला वही होता है एक दिन पहले. वही मतलब the day before. ठीक है, एक दिन पहले. So you had gone to sleep, you had gone to bed early before the day of exam. ठीक है. ला वही मतलब होता है जो पहला दिन होता है ना, उसको बोलते हैं ला वही, एक दिन पहला. चलिए कनिका. सेतिए नहीं, हाँ il s'était, या il s'était. Elle s'était excusée Ils étaient excusés après leur retard. Yeah, उन्होंने माफी मांगी. They had apologized, या they have said sorry after their delay. और लास्ट में नव्या. Je m'étais souvent Je m'étais souvenu. souvenu
la réponse après avoir quitté la salle. Après avoir quitté la salle. Quitté la क्या मतलब है इसका नव्या? salle. से souvenir, ये से souvenir पता है आपको? To recall. to recall. हाँ तो मतलब I had recalled the response after after I don't know what is quitté la quitté is to salle. quit करना, छोड़ देना. After quitting, after leaving After leaving the hall. the hall. हाँ मतलब हॉल से निकलने के बाद मुझे याद आया कि मुझे रिस्पॉन्स याद था. ठीक है, चलिए. ओके, सो दैट वाज इट. यू हैव ऑल द आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू. देख लीजिएगा, आपके पास है, आप उनको समझ भी जाएंगे. राइट, चलिए. ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू दिस टेक्स्ट. दिस वन. This one is ये आपने कर लिया था. Just a second. ओके, आ जाइए. तो इसको टेक्स्ट को पढ़ना है हमारे को. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान देना है और फिर मीनिंग ट्राई करोगे आप लोग मेरे साथ. तो यहाँ तक पढ़ना है कनिका को, यहाँ तक पढ़ना है नव्या को, और यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है शिवानी. चलिए, बहुत अच्छी सी फ्रेंच में एकदम स्मूथ. कनिका चालू कीजिए. ये quando visitei a Monali, विजिटे नहीं है, विजिट या visita Monali por no étude deixa rencontrer. Il y a une semaine, mais c'était सेते नहीं है, सेते नहीं है, cette सेट. fois, j'avais décidé de lui apporter un cadeau, apporter avant d'arriver, कनिका apporter un cadeau. apporter un cadeau. Avant d'arriver chez lui, j'avais acheté des fleurs à un livre qui m'avait recommandé quand je suis arrivée. Il avait déjà préparé le café et nous avons passé l'après-midi à discuter. Très bien, wonderful. Yeah, over to you, Navya. Paul m'a parlé de son voyage en Italie. Il avait toujours rêvé Ah, de visiter, Navya, il avait toujours rêvé rêvé de visiter ces pays. ces pays. Et Are you sure? C'est है, C, ces pays. ce. Not ces pays, Navya, ce pays. Et l'année dernière, il a enfin réalisé ce rêve. Il m'a raconté qu'il avait visité Rome, Florence et Venise. Florence, Florence. Florence. Avant de partir, il avait beaucoup plus sur l'histoire et la culture Italienne. italienne, ce qui lui a permis de Mieux mieux apprécier les sites qu'il a découverts. Very good. Très bien. Merci, Navya. Oui, Shivani. Après avoir visité tous ces endroits, il a dit Il a dit qu'elle avait encore envie de retourner en Italie pour découvrir d'autres régions
découvrir, Alors- सुनिए शिवानी, découvrir d'autres régions, découvrir d'autres des raisons, d'autres régions, d'autres raisons, régions. régions. Hmm. À la fin de la journée, j'étais content d'avoir passé du temps avec elle, Paul, surtout après qu'elle m'avait partagé des belles histoires. belle histoire. Histoire. Très bien, चलिए. Hier, j'ai rendu visite à mon ami Paul. ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा. Nous nous étions déjà rencontrés il y a une semaine, mais cette fois, j'avais décidé de lui apporter un cadeau. Avant d'arriver chez lui, j'avais acheté des fleurs et un livre qu'il m'avait recommandé. Quand je suis arrivé, il avait déjà préparé le café et nous avons passé l'après-midi à discuter. Paul m'a parlé de son voyage en Italie. Il avait toujours rêvé de visiter ce pays et l'année dernière, il a enfin réalisé ce rêve. Il m'a raconté qu'il avait visité Rome, Florence et Venise. Avant de partir, il avait beaucoup lu sur l'histoire et la culture italienne, ce qui lui a permis de mieux apprécier les sites qu'il a découverts. Après avoir visité tous ces endroits, il a dit qu'il avait encore envie de retourner en Italie pour découvrir d'autres régions. À la fin de la journée, j'étais content d'avoir passé du temps avec Paul, surtout après qu'il m'avait partagé tant de belles histoires. Ça va, नव्या, कनिका, शिवानी, कोई वर्ड ऐसा जो आपको लगा कि सर ये तो हमें आता ही नहीं था और आपने कैसा अलग बोला? आई एम श्योर एक भी ऐसा शब्द नहीं होगा. Mieux apprécier. Yeah, this one. Mieux apprécier. To appreciate better. Mieux is better and apprécier is to appreciate. Any word, Kanika, that you felt you are struggling or okay? Ça va? Toi, शिवानी? सब समझ में आ गया? सारे वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन क्लियर है? वो पहले देखना है हमारे को. देखो? चलिए. And so what is disputed? और discuter इंग्लिश का कौन सा वर्ड लग रहा है आपको, नव्या? Exactly, you have guessed it correct, to discuss. चलिए, मीनिंग का कल देखेंगे हम. आपको इसका मीनिंग ढूंढ के निकाल के रखना है. साथ में क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताने हैं जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी दे दिए, बट आपको अपने आंसर्स बनाने हैं. सवा. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक हम नया ग्रामर टॉपिक करेंगे आज. ये टॉपिक का नाम है कंडीशनल. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं एक चीज पूछ लेता हूँ आपसे. आपको एम्पारफे याद है? एम्पारफे अभी दिखाया था ना, नव्या ने पूछा था. एम्पारफे और प्लूस्पारफे में याद है आपको? शिवानी, एम्पारफे की एंडिंग्स क्या होती हैं? एम्पारफे की एंडिंग्स यही होती है ना एंडिंग्स. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. राइट कनिका? यही एंडिंग्स, सेम एंडिंग्स किसमें हमें काम में लेनी पड़ती है? इसमें. क्या नाम है इस टेंस का? इसको टेंस नहीं बोलते, इसको मोड बोलते हैं. मूड. क्या नाम है इस मोड का? कंडीशनल प्रेजेंट. ओके, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. कंडीशनल का मतलब क्या होता है? जो शायद हो शायद नहीं हो. कंडीशन है ना इसका नाम कनिका. कंडीशनल है, हो नहीं हो. शाम को क्या खाओगे? शायद मैं एक पिज्जा खाऊंगा. शाम को क्या करोगे नव्या? शायद मैं एक फ्रेंच फिल्म देखूंगी. शायद, पक्का नहीं पता, शायद. अगर शायद हटा दोगे तो शिवानी आज क्या करोगे शाम को? मैं आज डिनर करने बाहर जाऊंगी. पक्का है जाऊंगी. कौन सा टेंस यूज करोगे? विल. सिंपल फ्यूचर. याद है ना? पक्का जाऊंगी. सर शायद जाऊं मैं बाहर खाना खाने आज. शायद. जहां शायद लग जाए वो कौन सा टेंस हो जाएगा? कंडीशनल. ठीक है. अब बहुत सिंपल है. हिंदी में शायद लगा देना और इंग्लिश में क्या बोलना? वुड. विल मत बोलना. क्या बोलना? वुड.
विल कब बोलते हैं? जब पक्का पक्का जाते हैं। जैसे शिवानी ने कहा मैं पक्का शाम को खाने जाऊंगी बाहर, j'irai manger au restaurant। इसका क्या मतलब है? j'irai manger au restaurant, I will go to eat at the restaurant, ये मतलब है। ठीक है, I'll just voila, I'll redo it, hoping that it gets okay. Here comes this one. I have to cut it. Hola, you can paste it by long press. So I actually did something which was not correct. Okay, anyway, so I'll keep it here without disturbing it much. All right, so when Shivani says this, j'irai manger au restaurant, इसका मतलब पक्के से जाऊंगी मैं, पक्के से, क्योंकि ये जो है ना ईरे कौन सा टेंस है शिवानी? ईरे कौन सा टेंस है? कौन सा है? शिवानी, कोई और है जो बता सकता है कौन सा टेंस है? फ्यूचर सैम्पल है ना शिवानी, सिंपल फ्यूचर पढ़ा है? हाँ, आराम से रिलैक्स करो, क्योंकि अभी इतने सारे टेंस हैं कि जिंदगी में टेंशन आ जाएगी। इतना टेंस नहीं होना हमारे को। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से याद करो। प्रेजेंट टेंस याद है सबको, पासे कंपोज याद है सबको, नियर फ्यूचर याद है सबको, पासे रेसों याद है सबको, एम्पारफे याद है सबको, प्लुस्क पारफे याद है सबको, सिंपल फ्यूचर याद है सबको। इतना सब याद है? कनिका, शिवानी, नव्या, मिक्स एक्सरसाइज करवाई थी ना आपको, मिक्स वाले टेंसेस सारे दिए थे। अब ये आखिरी टेंस है, इसके बाद बिल्कुल जिंदगी स्मूथ चलेगी। A2 में सारे टेंसेस हो गए, अब सिर्फ हम रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग पे काम करेंगे, ये आखिरी है। इसके बाद सब फ्री, इसके बाद हम सिर्फ आपको कुछ कुछ ग्रामर के टॉपिक्स करवाएंगे। चलिए, तो ये तो था फ्यूचर। आई विल गो टू ईट एट द रेस्टोरेंट, पक्के से जाऊंगी। आई वुड गो टू ईट एट द रेस्टोरेंट, सर शायद, पक्का नहीं, देखते हैं शाम को, शायद। शायद लगाते हैं हिंदी में, फ्रेंच में लगाते हैं कंडीशनल और इंग्लिश में लगाते हैं वुड। विल नहीं लगाना, क्या लगाना है? वुड। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपको याद है फ्यूचर सिंपल कैसे बनता था कनिका? फ्यूचर टेंस कैसे बनता था? पूरा वर्ब काम में लेते थे, पार्ले, danser, prendre, travailler और regarder, voyager, पूरा वर्ब, और एक फिनीर ले लेते हैं, फिनीर। अब करना क्या है आपको? फ्यूचर टेंस में आपको याद है कनिका, शिवानी, नव्या, हम AI, AS, A, ONS, EZ और ONT लगाते थे, याद आ रहा है आपको? अवार की एंडिंग थी, ठीक है। यहाँ ये वाली एंडिंग चलेगी, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो, ये ज है, ये त्यू है, ये इल है, ये एल है, ये ओ है, ये नू है, ये वू है, और अंत में एक इल के लिए अपन ले लेते हैं, एक और वर्ब ले लेते हैं अपन, IR है ना, तो श्वाजीर ले लेते हैं, श्वाजीर, श्वाजीर। और कलर का चेंज करता हूँ मैं, और ये ले लेते हैं इल या एल। अब क्या एंडिंग लगानी है हमारे को? बड़ा ध्यान दीजिए आराम से। Je parlerai, tu danserais, ये ई को हटाते थे, याद है आपको? फ्यूचर टेंस में भी, नव्या, कनिका, शिवानी, ई को ड्रॉप करके, तो ई को ड्रॉप किया, और क्या एंडिंग लगा दूं मैं? AIT, 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 IONS, IEZ, AIENT, ऐसी शक्ल हो जाएगी कंडीशनल की। तो जब आप ये बोलोगे ना शिवानी, कनिका, नव्या, je parlerai, I would speak, I might speak, शायद मैं बोलूं, शायद मैं बोलूंगी। tu danserais, शायद तुम डांस करोगे, you would dance। il prendrait, elle travaillerait, on regarderait, nous voyagerions, vous finiriez, elle choisirait।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? वुड, वुड करके बोलना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, वुड करके बोलना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? शिवानी, सवा? और इसका मतलब क्या होता है? वुड का मतलब और विल का मतलब, विल मतलब पक्के से और वुड मतलब कंडीशनल है, शायद, देखेंगे, पता नहीं, है ना, कंफर्म नहीं, इसलिए तो उसको कंडीशनल बोलते हैं, इसका नाम ही कंडीशनल है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसा हर कहानी में ट्विस्ट होता है, वो क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि ऐसी 10-12 वर्ब्स हैं जिनकी बॉडी बदल जाती है। याद है फ्यूचर टेंस? पूछता हूं मैं एक एक से, चलिए अभी पता चल जाएगा कितना आप लोग पढ़ाई करते हो। आले का बताइए, कौन बताएगा? आले की बॉडी क्या बन जाती है फ्यूचर में? आई आर। ठीक है, ए3 की बताओ। SER बन जाती है। अवार की बताओ। AUR बन जाती है, वेरी गुड। पुवार की बताओ। हाँ, POURR। बुलवार की बताओ। वुद्र। ऑम्वोये की बताओ, बताइए बताइए, ऑम्वोये की। फेयर की बताइए, सवार की बताइए, याद है सबको? वनीर की याद है? बताइए क्या हुआ ऑम्वोये की? एनीवन? फ्यूचर टेंस में सीखा था ना? ऑम्वेर सीखा था हमने, कनिका, शिवानी, नव्या। और वार की? What happens is you have to take the same body as future वाला body, नव्या, और ending वो लगानी है। ending तो लगानी है ये वाली, लेकिन body वही future वाली चलेगी। तो future simple बोलो कनिका, नव्या, शिवानी, या कंडीशनल बोलो, दोनों में बॉडी सेम चलती है, शुरुआत वाली बॉडी। या तो वो मेन वर्ब चला लो आप एज इट इज, और नहीं तो इन वाली क्रियाओं के अंदर आपको याद है एर बनता है, सैर बनता है, तो चेंज होएगा। तो आप बताओ फेयर का क्या बनता है? फेयर। सवार का सौर, और अंत में वनीर का वियंत्र। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? इनके अंदर एंडिंग लगा देना। कौन सी एंडिंग? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ और AIENT। तो हमारा बन जाएगा कंडीशनल। ठीक है, उदाहरण के लिए आई वुड हैव, जोरे, मेरे पास शायद होगा, पक्का नहीं होगा, नहीं होगा। ज सरे, आई वुड बी, वुड लगाना है ना, याद है? वुड, विल नहीं लगाना। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला भी छोड़ देना, ये बाद में कराऊंगा, ये वाला कंडीशन। ये वाला देख लेते हैं। आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, मैं कॉफी पीना चाहूंगी, कॉफी पीना चाहूंगा, कैसे बोलते हैं नव्या? वेरी गुड। अब ये नहीं बोलना je veux un café, आई वांट अ कॉफी, नहीं, je voudrais, पोलाइट। ये पोलाइटनेस भी दर्शाता है ना, आई वुड लाइक। ओके, वी कुड गो टू द सिनेमा, आज शाम को हम शायद सिनेमा चल सकते हैं ना, चल सकते हैं, एक सजेशन है। जब सजेशन होता है ना, तब भी हम यही बोलते हैं। क्या बोलोगे कनिका इसको फ्रेंच में? वी कुड गो टू द सिनेमा। हाँ, मतलब आप सजेस्ट करो और अपन सिनेमा चल सकते हैं ना, वी कुड, तो ये होगा, राइट। और अगर आपकी कोई इच्छा है, शिवानी, मैं बीच पे जाना चाहूंगी, j'aimerais être à la plage या j'aimerais aller, इसमें aller भी लगा सकते हो, मैं जाना चाहूंगी, j'aimerais aller à la plage, I would like to go to the beach। क्लियर है? डायलॉग करे थे, हाँ, याद है यहाँ तो पे? हम इसका यूज लेते थे वुद्रे। वुद्रे, वेरी गुड। देखो याद आ गया आपको वुद्रे, ये पोलाइट तरीका होता था ना। तो मैंने आपको कहा था कि मैं A2 में सिखाऊंगा, तो वो आज की घड़ी थी, वो उस दिन की घड़ी और आज की घड़ी से वुद्रे, आई वुड लाइक। लेकिन ये बेसिकली वुड लाइक नहीं होता, ये क्या होता है? आई वुड वांट, क्योंकि इसमें वांट छुपा हुआ है ना, वांट है इसमें छुपा हुआ। लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलते नहीं है नव्या, इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते आई वुड वांट टू ईट। हम बेसिकली इसको कैसे बोल जाते हैं अंग्रेजी में? आई वुड लाइक, क्योंकि आई वुड लाइक तो ये है ना कनिका, ये लाइक ए में लाइक होता है ना, ये क्या है? आई वुड वांट। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों को क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक।
दोनों को आई वुड लाइक बोलते हैं, ठीक है। आई वुड वांट कम बोलते हैं, वैसे गलत नहीं है वो। चलिए ये थोड़े बहुत दे दिए, आले अवर एच फेयर पोवर बोलो, आप जानते ही हो। ये होमवर्क है आपके लिए, ये सारे आप ट्राई करना, सब में कंडीशनल भर देना जो जो खाली स्थान है। क्लियर है? तो आपका होमवर्क क्या है? 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको। एक तो जो टेक्स्ट दिया था उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और दूसरा ये कि जो आपको कंडीशनल के मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसको आपको पूरा करना है। Ça va? Ok, est-ce que vous avez des questions pour moi? Non, pas de questions? Ok, तो आज हमने सारे टेंसेस क्लियर कर लिए हैं, इसको हम एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम A2 में जो आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़ी बहुत लिसनिंग एक्टिविटीज करेंगे और थोड़ी स्पीकिंग पे ध्यान देंगे, और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। D'accord? Ok, très bien. Je vous souhaite bonne soirée et à demain. Merci, au revoir. Everyone. Merci. Oh, Au revoir. Adama, À demain.